हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन नियोनेटल एस्पेक्सिया या एस्पेक्सिया नियोनेटोरम। दिस इज़ वेरी important care plan in child nursing, and it is also useful for the practical file work and एग्जामिनेशन पर्पस। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लर्न कीजिएगा। नर्सिंग केयर प्लान ऑन नियोनेटल एस्पेक्सिया एस्पेक्सिया नियोनेटोरम। In nursing care plan on neonatal asphyxia, here first we learn about the asphyxia neonatorum. Here asphyxia neonatorum or neonatal asphyxia is same things. Here this is neonatal asphyxia, also known as asphyxia neonatorum. Asphyxia neonatorum means non-establishment of the satisfactory pulmonary respiration at birth. Means during the birth there is a non-establishment, means your immaturity or due to lung immaturity, there is not establishment of the respiration during the birth year. It is also defined as a failure to initiate and maintain a spontaneous respiration within 1 minute of birth. मीन्स जो न्यू बॉर्न है, मीन्स जन्म के तुरंत बाद एक ठीक से रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को हम एस्पेक्सिया नियोनेटोरम या नियोनेटल एस्पेक्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। Here, symptoms of birth asphyxia may not be obvious, but the most common symptoms include before birth abnormal fetal heart rate and birth, poor skin color, heart rate, low heart rate, weak muscle tone, gasping of beak breathing, and meconium stained amniotic fluid. These are the specific clinical manifestation or sign and symptom of the this disease. नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन नियोनेटल एस्पेक्सिया। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा। Your mother says that her baby has breathing problem, and your objective data, baby has cyanosis dyspnea. फर्स्ट एक केयर प्लान है इसमें। फर्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, ineffective breathing pattern related to low intake of oxygen as evidenced by the cyanosis, difficulty in breathing and beak cry at birth। तो ये हमारा डायग्नोसिस है। नेक्स्ट देखते हैं गोल क्या होगा यहाँ पर। गोल होगा यहाँ पर टू मेंटेन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पर गोल होगा। और प्लानिंग मीन्स एयर इंटरवेंशन, क्लियर एयर वे, गिवन ऑक्सीजन बाई मास्क, monitor vital signs, upper hourly and temperature, pulse respiration, and monitor color of baby and activities। यहाँ पर हमारे प्लानिंग है, इंटरवेंशंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट एयर वे वाज क्लियर्ड बाई बाइपिंग नोस्ट्रल्स एंड माउथ एंड आल्सो सक्लिंग। नेक्स्ट ऑक्सीजन वाज गिवन 8 liter per minute by face mask, vital sign observation taken hourly and then 2 hourly। नेक्स्ट मॉनिटर बेबी कलर एंड एक्टिविटीज़। तो ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन होंगे इंटरवेंशन या प्लानिंग के। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन। एयर क्लियरिंग ऑफ द एयरवे हेल्प remove mucus secretions and maintain patent airway। Supplemental oxygen help to meet all metabolism demand in the body tissue। Close monitoring of vital sign, color and activities help to detect any abnormal condition and act as a guide if there is improvement। Next, after providing these interventions we write air evaluation। Now the
airway remained clear or there is effective breathing than previously. तो ये हमारा फर्स्ट केयर प्लान हुआ. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड. यहाँ पर हमारा केयर प्लान नंबर सेकंड है. सीरियल नंबर सेकंड केयर प्लान. असेसमेंट देखते हैं फर्स्ट. सब्जेक्टिव डाटा. द मदर सेज दैट बेबी इज शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा. ये वाइटल साइन हाइपोथर्मिया. ये हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होंगे इस केयर प्लान के. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इमेच्योर heat regulation center as evidenced by the temperature 36.5 degree centigrade. नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 36 to 7 degree centigrade in 2 to 4 hours. नेक्स्ट प्लानिंग यहाँ देखते हैं. प्लानिंग या इंटरवेंशन कीप बेबी वार्म, मॉनिटर टेम्परेचर half hourly. Next general condition improves, provide radiant warmer and place infant in the incubator isolate based on the hypothermia. Next implementation देखते हैं. baby kept warm by covering with the warm clothes and use of heater to maintain warmth and throughout and continue with observation temperature half hourly and then 2 hourly. Provide radiant warmer and the place infant in an incubator. Next देखते रेशनल मीन्स जो हमने इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिखे थे उसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है. कीप द बेबी वार्म एंड हीटिंग द रूम, प्रिवेंट टू हीट लॉस थ्रू कंडक्शन, evaporation and radiation, provide a controlled warm and lessen the heat loss causing hypothermia. ये यहाँ पर रेशनल होगा इंटरवेंशंस का. नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन मीन्स जो हमारा गोल है अचीव हुआ है कि नहीं. यहाँ पर देखते हैं एवेल्यूशन में द बेबी टेम्परेचर इम्प्रूव्ड टू नॉर्मल रेंज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पर हमारा गोल अचीव्ड हो गया. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केयर प्लान. दिस इज केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर neonatal asphyxia. ईयर सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा. असेसमेंट में नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू दिस इज रिस्क डायग्नोसिस. ऑब्जेक्टिव डाटा द बेबी हैव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इमेच्योरिटी. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेजिव प्रोसीजर एंड रिस्क फॉर ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ द बेबी सिस्टम. गोल होगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न यूनिट. बेबी विल नॉट एक्वायर इन्फेक्शन. ईयर प्लानिंग होगा हैंड वॉशिंग, यूज एंटीसेप्टिक टेक्निक, गिव एंटीबायोटिक, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ऑब्जर्व और मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन. ये हमारे यहाँ प्लानिंग होगा. इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. ईयर हैंड वॉशिंग and gloving by all staff before handling the baby. Treatment given under the aseptic technique IV amikacin 600 mg OD. Baby code clean. नेक्स्ट देखते हैं रीजनल. यहाँ पर हैंड वॉशिंग, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक, प्रिवेंट सेकेंड इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनहेंस रिकवरी. ये यहाँ रेशनल होगा. नेक्स्ट एवेल्यूशन देखते हैं. बेबी जर्नल कंडीशन इम्प्रूविंग as sign of infection noted as vital sign remained with normal range. तो यहाँ पर ये थर्ड केयर प्लान हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं नंबर केयर प्लान फोर्थ. इसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग जैसे कि मैंने पढ़ा तो ऊपर सेम. यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा मदर सेज द बेबी हैज़ फीडिंग प्रॉब्लम एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर फीड. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. द बेबी हैज़ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी. डायग्नोसिस होगा यहाँ पर. दिस इज डायग्नोसिस. पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इम्प्रॉपर फीडिंग. यार गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी. दिस इज गोल. नेक्स्ट प्लानिंग होगा चेंज लिनन. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी
ट्रीट प्रेशर एरिया, चेंज बेबी पोजिशन फ्रिक्वेंटली, ये प्लानिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन एंड रेशनल या इम्प्लीमेंटेशन एंड रेशनल देखते हैं। बेबी लिनेन चेंज्ड वेन एवर सोइल्ड 3 hourly, turning was done by Huck's mother shown how to do it by massaging. या नेक्स्ट देखते हैं रेशनल फॉर दिस ईयर, ऑल दीज एक्टिविटी हेल्प टू प्रिवेंट एक्सकोरिएशन विच कैन लीड टू प्रेशर सोर। नेक्स्ट देखते हैं evaluation. Here evaluation, no skin excoriations noted and the baby skin remained intact. तो ये था केयर प्लान नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5। यार दिस इज केयर प्लान नंबर 5। इसमें देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। The mother ask about the care of baby. Here objective is the mother looking anxious associated with the disease process. Next diagnosis हो गया पर knowledge deficit related to baby's care after hospitalization on characterized by parent verbalizing indicating lack of knowledge. गोल होगा यहाँ पर to improve knowledge of both mother and father on baby's care after discharge. प्लानिंग या इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर assess parents knowledge by asking what they know about the newborn baby. Implementation health massage included keep health message included keep baby warm and clean always. Next exclusive breastfeeding on demand. Next immunization of the newborn on discharge to prevent from infectious disease. Follow up clinic at pediatric outpatient clinic after 2 hours. Next rational लोग यहाँ पर health education increases knowledge and help family to adjust with the newborn at the home and provide good care, and it is also help them to cope well with less problem. Next evaluation देखते हैं parents or appreciated on or the knowledge gaining and the help received during the time of sickness or of their baby, also promise to कंटिन्यू विद फॉलोअप्स। तो ये था हमारा यहाँ एवेल्यूशन, और ये हमारा था लास्ट नर्सिंग केयर प्लान फॉर नियोनेटल एस्पेक्सिया। एक बार फिर देखते हैं यहाँ पर, ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान। ये सेकंड नर्सिंग केयर प्लान था यहाँ पर। ये था थर्ड नर्सिंग केयर प्लान। ये था फोर्थ नर्सिंग केयर प्लान एंड ये था फिफ्थ नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, नर्सिंग केयर प्लान ऑन नियोनेटल एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया नियोनेटोरम। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक से कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल योर प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।